Hello guys. So last night, yani yesterday, we had XMT exam, and today we are going to discuss half of the quant questions in this first part of the video with options created by me, and all the questions are memory based. And I have tried to take the questions from the exam hall to you so that you can check your answers and understand why the questions were so difficult to solve. And anybody who has solved more than 4 questions in quant section should clear the cutoff. That means 90 percentile, be it domicile or non-domicile. So we'll try to find out those 4 questions first. Were they easy, solvable or not? And why they have not used any of the PYQs, or as claimed by the Quanticat that the questions are very common or from the mocks. Our mocks usually are a bit higher level than the expected XCMT, but this time the level of difficulty in quant section surpassed Quantica's mock also. Okay, so when I was trying to solve the question in the examination hall, I had to pick up the pen and do the calculation. In general, when I go and write CAT or XAT exams, there are at least 4 to 5 questions where I solve the questions by using the options. Okay, so you should understand this is the condition of a student who has cleared CAT with 99.96 percentile in quants and DI section. So let us consider this question. So any question will give us a very tough competition. Any question was very difficult. So this question, ABC is equal to D, BCD is equal to A, CDA is equal to B, and D. So basically in such questions, what happens generally, what do I suggest? When I divided these two, okay, I got C by A is equal to A by C. And that was giving me A by C whole square is equal to 1. So I understood A and C can change the sign. Okay, then similarly happened with B and D, and similarly it was happening with the other variables also. So either A is equal to C, or I can say that A is equal to minus C. But I'm not claiming that you should solve this question by using this technique only, because this was the prompt response from my brain. One thing is clear, that if I put the value of A, B, C as like 1, 1, 1, 1, like this, so this will be satisfied. Some students have got the answer very, very less, like 1, 2, 3. And they were wrong because they did not understand the meaning of ordered pairs. Ordered pair का मतलब वो नहीं समझे. So if you take 1, 1, 1, 1, this equation will be satisfied, right? Because then ABC, 1 into 1 into 1 will be 1. And everything will be satisfied. Second, if I take all of them to be 0, 0, 0, 0, the condition was given that it was integers. So again, this will be satisfied. You try to solve the question by the technique that I'm giving you, right? If you take all of them to be minus 1, what is going to happen again? Minus 1 into minus 1 into minus 1, minus 1. So if all 4 are equal and they are equal to 1 or 0 or minus 1, that's one case. So A is equal to B is equal to C is equal to D will solve the problem, but it should be equal to either 1 or 0 or minus 1. Okay? So this technique I teach my students on a daily basis. Even in XMT master classes, in one of the questions, I have asked you guys to directly put the value of ABC, whereas it was given that they are not equal. So if A, B, C, D all are equal and they're equal to X, so what is going to happen? If A, B, C all are equal and they're going to be equal to X, so what will happen? X into X into X is equal to X. So X cube will be equal to X. So that will give you X cube minus X is equal to 0. So that will give you X, and within bracket X square minus 1 is equal to 0. So this will give you X into X plus 1 into X minus 1 is equal to 0. And then again, this is X minus 0 into X minus 1 into X plus 1 is equal to 0. So X is getting the value 0, minus 1 and 1. So these are the 3 solutions. Considering that they are equal, I have assumed that A, B, C, D have the same value. So they are equal. Now, what if they don't have the same value? Then in that case, A will be equal to minus C, B will be equal to minus D, and such cases. So basically, they can take the cases like 1 minus 1, 1 minus 1. Look at this case. When you multiply A, B, C, okay, you get D.
When you multiply B, C, D, you're getting A. B, C, D, -1, 1, -1, getting A. So basically, if you take two values to be 1, comma 1, and two values to be -1, comma -1, again, the equation will be satisfied. You just need to arrange them in 4C2 different ways, which is equal to 6, right? The other formula will be like 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial. Okay, so 6 different ways. 6 plus 3 here, the answer is 9. And I'm pretty sure that I did it correctly. The answer is 9 for this question. Now let us move to the next question. N is a natural number. How many factors of n are perfect square? How many factors of n are perfect square? First is saying n has only two prime factors. They're not talking about the composite factor. I found this question a bit ambiguous in the exam hall. N has only two prime factors. Now prime factor तो दो है, composite factor कितने पता नहीं है, तो इसका आंसर तो निकलेगा नहीं. सेकंड में कह रहा है n has 9 distinct composite factors. अब 9 distinct composite factor है, prime numbers कितने, prime factors कितने पता नहीं. So alone they cannot be solved. When I try to combine the two, okay, I could not get the unique answer. So I left this question in the exam hall. N has only two prime factors. N has 9 distinct composite factors. I don't know after combining whether we are going to get the answer or not. Okay. In case you're finding the data of the question wrong, please write in the comment box saying that the sir data could be this. Okay. So in my opinion, this should be both statement 1 and statement 2 are not sufficient to solve the question. Okay. This question. So all the questions are created by me, memory based, right? So three numbers A, B, C are in AP, but not in GP. The perfect squares are in HP. What is the value of B by A? So this was actually capital B, but B by A. And the options were like this. Okay. So I can solve this question by using or taking some different values. What is the value of B by A? So B by A, most of the option is like minus C by 2B, minus C by 3B. So if I take one of the options, minus C by 2B, so this will become B square. In fact, 2B square is equal to minus AC, which will become 2B square is equal to minus AC. Okay. Now A, B, C are in AP. So 2B is equal to A plus C, but not in GP. So B square is not equal to AC. And the perfect square are in GP, HP. That means 1 by A square, comma, 1 by B square, comma, 1 by C square. They are in AP. So what is happening? 2 by B square is equal to 1 by A square plus 1 by C square. So अगर यहाँ C by 2B होगा, C by 3B, C by 4B. AC whole square. So this is going to be 2 by B square is equal to A square plus C square divided by, अगर मैं AC जगह minus 2B square हो जाएगा 4B square. B square cancel. A square plus C square is equal to 8. और यहाँ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, so this will be 4B square is equal to A square plus C square plus 2AC. Okay. So 4B square minus 2AC is equal to A square plus C square. Okay. So 4B square minus 2AC यानी कि minus 4B square. So A square plus C square is coming 0 from here. Right? If I take the option 1, 2B square is equal to minus AC. मैंने स्क्वायर कर दिया है. So 4B square is equal to A square. ठीक है. 4B square minus 2AC. Minus 2AC का मतलब हो गया plus. Minus 2AC मतलब plus 4B square. So 4B square plus 4B square आ रहा है. Is equal to A square plus C square. So 8B square is equal to A square plus C square. Okay, then you divide it.
ऐसे करके कुछ घेच पे के ये तो बना दिया था मैंने। वहां बनाया मैंने 8b² को टू a² प्लस c² डिवाइड करूं तो ये कहाँ से आया, ये मैंने AP को स्क्वायर कर दिया था। और ये ऑप्शन उठाया था, ठीक है। अभी HP का इस्तेमाल नहीं हुआ है। HP क्या कह रहा है, HP कह रहा है कि 2/b², 2/b 1/a² प्लस 1/c²। मैं किससे डिवाइड करूँ, a²c² डिवाइड करूँ तो 8b² / a²c² इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा अपना 1/a² प्लस 1/c², यानी 8b² / a²c²। राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2/b², शाबाश, फिर से वही आ जा रहा जो वहां पे ऑप्शन में। सो बेसिकली 4b² इज इक्वल टू a²c²। ठीक है, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा था कि 4b² इज इक्वल टू a² प्लस c²। तो फर्स्ट ऑप्शन को लेके मैंने ट्राई किया था एग्जाम में, ये बन रहा था। बाकी को लेके बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। वैसे मुझे लगता है काफी आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है इन अ नॉन एग्जाम हॉल कंडीशन। ठीक है, आप लोग घर बैठकर इसको ट्राई करना। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिक्रिएट रिप्रोड्यूस द सेम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद द ऑप्शंस अवेलेबल। आप ये भी कमेंट में लिख के बताएं कि am I able to achieve this or not। ठीक है, द क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, इसका ऑप्शन पहला वाला ही आंसर है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग थे। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन। मैंने ये रिक्रिएट किया है, सो लैंग्वेज बहुत गलत हो सकता है, बट व्हाट आई मेंट देयर, व्हाट द क्वेश्चन फेल्ट देयर, वो लिखता हूं मैं। दो सर्कल था, टू सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट Q। एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं और फिर बोल रहा है कि दो कॉमन टेंजेंट हैं जो लार्जर सर्कल को टच कर रहे हैं D और E पर। ठीक है, डी पर और ई पर टच लार्जर सर्कल को, और एफ में जाकर वो मिल रहे हैं, यानी एक छोटा सर्कल है यहाँ पे, एक छोटा सर्कल यहाँ बीचों बीच में है। करेक्ट है। उसके बाद बोलते हैं ये लोग कि इफ आई एम राइट, एफ डी इज इक्वल टू 4। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, मैंने रिक्रिएट किया है। एफ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दिस वॉज वॉट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन। दिस इज 4 सेंटीमीटर। और ये वाला, ये जो है 90 डिग्री होता है, कोई भी टेंजेंट रेडियस साथ 90 डिग्री होता है। ये जो बड़ा वाला सर्कल है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस पूछ रहा था। सो बेसिकली वी कैन assume this to be A and B and C। ओके, सो अब इस ट्रायंगल को हम ऐसे बनाए तो this perpendicular is 4, this base is 3, this hypotenuse is 5। perfectly all right। now ये 90 डिग्री है, यहां पे भी एक 90 डिग्री है। दिस इज योर स्मॉल r। This length is not known to us, assuming this to be x. So x by r is equal to 4 by 3। Okay, x by r is equal to 4 by 3। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो x की वैल्यू 4r/3। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी 4r/3। परफेक्ट। हम्म, नो अगर इसको हम y मान लूं तो y by r is equal to full 5/3। so y is going to be 5r/3। so ये मेरा 5r/3 आ रहा है। सो बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज सब मिल गया। सो बेसिकली 4r/3 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 5r/3 का स्क्वायर। क्या इससे सॉल्व नहीं हो रहा है? तो दिस विल बी 16/9 प्लस 1, 25 आर स्क्वायर बाहर में। और कौन सा रूल लगेगा? सोचने दो मुझे थोड़ा सा। तो बच्चों, जैसा आप लोग देख रहे हो, आप लोग की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो जैसा आप लोग देख रहे हो, मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है।
ओके। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो लेंथ बच गया है इसको कैलकुलेट किया, यानी सी और डी को कैलकुलेट किया, विच इज कमिंग एज 8r/3। नाउ दिस लेंथ विल बी कमिंग एज 5 माइनस 5r/3, मतलब वहां पर आ जाएगा वो 10r/3। और फिर से पाइथागोरन ट्रिपलेट में, बट जबकि ये लेंथ जो है वो है 3 माइनस r। तो जब मैंने ऐसा किया तो r की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, ऑप्शन में था भी मौजूद वहां पे, बट मैंने किसी वीडियो में देखा कि इसका आंसर कुछ और ही है। ठीक है, 1 रख करके सेटिस्फाई तो मेरा हो रहा है। अगर 1 रख दूं तो 4/3, 5/3, और ये 3/3, 1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 8/3, 10/3 से 2 हो जाएगा। सेटिस्फाई तो कर रहा है, सो आई विल गो विद दिस आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन जो था, बस जैसे मैंने कहा कि देयर वर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन बाय द ब्रेसर जस्ट बाय लुकिंग एट इट। वन ऑफ देम इज दिस। ठीक है, इसको देखते के साथ मैंने सॉल्व किया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, एक स्फीयर है कैपिटल वी, इज 26% हाइयर देन द नेक्स्ट स्फीयर, राइट। तो वॉल्यूम जो है बेसिकली वो 27 टाइम्स है ऑफ द स्मॉल वी। ठीक है, तो कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर स्फीयर, स्मॉल वी इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर। तो फॉर्मूला है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल 27 इंटू 4/3 pi small r cube. This will get cancelled. So capital R cube is equal to 27 small r cube, which will give you capital R is equal to 3r. Now, when you calculate the surface area of the larger sphere vis-a-vis the smaller sphere, what do you get? So this will be r square by r square, right? This r is 3 into r whole square by r square, which is going to be 9. ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि यहां से ऐसा हो गया कि आपका हमें समझ में आ गया कि भैया 9:1 के रेशियो में उनका सरफेस एरिया है। ओके, तो या तो वो 9 पूछेगा, 9 इज मतलब द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर स्फीयर हाउ मच मोर देन द स्मॉलर एरिया, या तो उल्टा पूछेगा। अगर 9 माइनस 1/1 इंटू 100 एक आंसर होगा, विच विल बी 800%, दैट वाज नॉट प्रेजेंट देयर। दूसरा आंसर 1 - 9/9 इंटू 100 होगा, यानी 8/9, that will be 88.89%, that was present over there. So ये one of the questions that उन बच्चों का जिनको पता है कि क्वांटिका के मॉक से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए थे जी, वही मैं बोल रहा हूं। सो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, यानी स्नैप लेवल में भी जिन बच्चों के बहुत ही कम स्कोर है, या कैट में जिन्होंने लेस देन 30% 40% किया है, तो उनको तो 2-4 क्वेश्चन आ भी जाते। तो वो बच्चे जो डिफिकल्ट में सॉल्व कर रहे हैं उसमें तो कर ही देते, है ना। तो कट ऑफ या फिर आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस कहीं भी बढ़ते या घटते नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो बिल्कुल भी वहां पे 1 सेकंड में बनने वाला दूसरा क्वेश्चन ये था। सो ए बी सी फिनिश अ प्रोजेक्ट एंड गेट 529 रुपीज इन टोटल। ए एंड बी डज, ये वहीं पे देखते के साथ मैंने देखा कि ए और बी दोनों मिल करके 19/23 ऑफ द वर्क कर चुके हैं, जबकि बी एंड सी दे फिनिश 8/23 ऑफ द वर्क, राइट। व्हेन दिस हैपेंस आई एडेड बोथ ऑफ देम। तो मैंने क्या किया, वर्क को ही वहां पर वाइल कैलकुलेटिंग मैंने 23 यूनिट्स मान लिया, वहीं पर उसको 23 यूनिट्स मान लिया। अब जैसे मान लिया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 19 हो गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 8 हो गया। व्हेन आई एडेड दिस आई गॉट a प्लस b प्लस सी, और एक एक्स्ट्रा b इज इक्वल 27। ये एक्स्ट्रा b देखो, द टोटल वर्क इज लाइक 23, सो b की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए। जब b 4 हो जाएगा तो यहां पे बिठाने से यू गेट c इज इक्वल टू 4। जब c 4 हो जाएगा तो यहां पे बिठाने से यू गेट a इज इक्वल टू 15। So basically a should get 15/23 of the total amount, which is 529. Now 529 is a square of 23, so ये कैंसिल हो जाएगा। So 23 into 15, 345 जो है वो आपका हो गया आंसर। ओके,
चलिए, यस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे डेटा सफिशिएंसी का है। सो देयर वर इंस्ट्रक्शन लाइक कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत। फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ इज मंडे, रिमेंबर, फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ इज मंडे। टू मच ऑफ हिंट, बहुत सारे डेटा यहां पे दिए हुए हैं। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ इज इक्वल टू संडे। तो इसको मैच कराने की कोशिश करते हैं, इज दिस पॉसिबल। ठीक है, आज का जो मंथ है उसका फर्स्ट डे है मंडे, जबकि प्रीवियस मंथ का संडे। तो प्रीवियस मंथ का जो फर्स्ट तारीख होगा वो संडे को है। तो फर्स्ट से मिलता है 8, उससे मिलता है 15। उस तो कैलेंडर आपने देखा होगा, तो यहां एक लिखा होता है, उसके नीचे 8, 15, 22, 29। सो ये है संडे का पूरा। लास्ट मंथ का कैलेंडर में एक तारीख, 8, 15, 22, 29, ये सब संडे को पड़ रहे हैं। ठीक, 29 के बाद मंडे कब आया होगा? 30 को। तो मंडे को ये मंथ शुरू हो रहा है। इसका मतलब है इफ आई टेक द फर्स्ट हिंट, तो इससे क्या पता चलता है कि लास्ट मंथ वॉज अ मंथ ऑफ 29 डेज। इसको आप खूब आराम से सॉल्व करना। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ संडे, फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ मंडे, इसको एडजस्ट करना। संडे से मंडे में कैलेंडर खोलो, गो थ्रू ऑल दी मंथ्स। ऐसा नहीं होगा कि ये महीना संडे को, नेक्स्ट महीना मंडे को, ऐसा नहीं होगा। पता है क्या होगा? दिस ईयर इज 2026 ना। अभी कैलेंडर खोलो तो आप देखोगे फर्स्ट फेब जब होने वाला है, आज 25 है, संडे को शायद होने वाला है फर्स्ट फेब। तो मार्च जो आएगा वो भी संडे को आएगा। ठीक है, बट यहां पे मंडे हुआ, यानी 29 डे का मंथ। और 29 डे का मंथ कब होता है? होता है फरवरी में। तो लीप ईयर है, फरवरी है, हमें पता चल गया कि फरवरी जो है शुरू हुआ था संडे से। इसी से हम अंदाज लगा लेंगे कि शायद फ्राइडे या थर्सडे को वो शुरू हुआ होगा साल का, यानी 1 जनवरी आया होगा। सो फर्स्ट हिंट इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट हिंट इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ व्हेन आई गो टू द सेकंड हिंट, राइट, अगेन फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ इज मंडे। अभी वाला जो मंथ शुरू हुआ मंडे है, और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज थर्सडे। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। अब मंडे को ये महीना शुरू हुआ, यानी जो चल रहा है, तो मंडे को 1 तारीख, 8, 15, 22 और 29 मंडे को। तो 30 कब पड़ेगा? ट्यूसडे को। और 31 कब पड़ेगा? वेनेसडे को। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का जो होगा वो, यानी कि ये महीना जो गुजर रहा है वो 31 डे वाला महीना है। सेकंड हिंट से पता चलता है। अब 31 डे वाला महीना है तो कौन सा महीना? वो जनवरी है कि मार्च है कि मई है कि जुलाई है कि अगस्त है? वी कैन नॉट से। सो फर्स्ट हिंट इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड इट वाज टेकिंग टाइम, यानी 4 to 5 मिनट्स लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो बच्चे कैट में मोर देन 90 परसेंटाइल लाए हैं इन क्वांट्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, अक्रॉस कैट, अक्रॉस स्नैप, अक्रॉस जैट। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और बहुत सारे हिंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए थे। जैसे अमूल्या, या यहाँ पे नाम अमूल्या नहीं है, कुछ और था, मैंने डाला है अमूल्या, बिन्नी, चेतना, देविका, इतना मैंने लिख करके मैं लाया था कि अमूल्या हैज गिवन 1/3 टू बीना, बीना हैज गिवन, या बिन्नी हैज गिवन 1/4 टू सी, यानी चेतना, या कुछ और नाम होगा, एंड चेतना हैज गिवन 1/5 टू देविका, राइट। यानी ये initially they started with some number of chocolates, in the end they had सेम चॉकलेट्स। तो आई टुक अ रिस्क इन दी एंड। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में मैंने सोचा ए, बी, सी, डी। तो मैं देख रहा हूं कि यहां 3 है, 4 है, 5 है। मैंने थोड़ी सी दिमाग लगाया कि चलो भाई मैं क्यों ना ऐसा कोई नंबर लूं विच इज द एलसीएम ऑफ ऑल दिस। लास्ट में इनके चॉकलेट सेम है, तो आई टुक इट एज अ मल्टीपल ऑफ 60। मैंने एग्जैक्टली 60 नहीं लिया, 60x लिया। अब एज्यूम करने की वजह से मेरे क्वेश्चंस कभी कभी अच्छे से बन जाते हैं। ठीक, तो सबसे लास्ट में क्या हुआ था आइए समझते हैं। किधर गया कर्सर? हाँ,
तो दिस इज द एंड ऑफ द मूवी, यहां पे मूवी खत्म हुई है ना। और ये क्या हुआ लास्ट में? लास्ट में चेतना ने 1/5 दिया अपना देविका को, तो 1/5 दिया, तो जो बच गया वो 4/5 होगा, यानी इसके पहले इसके पास 75 होगा, मुझे सोचने दो, और ये होगा 45x, मुझे सोचने दो। तो 75 का 1/5 15 दिया बैलेंस, अच्छा, तो इन दोनों का उस वक्त है 60 एंड 60, ठीक है। उसके पहले बी ने दिया सी को 1/4, 1/4 दिया, 1/4 दिया तो 3/4 रह गया, यानी 20 दिया होगा, 20 दिया होगा, यानी ये उसके पहले 80x होगा, और ये उसके पहले 55x होगा, और ये उसके पहले 45x होगा। अगर मेरे पास 80x है एंड इफ आई गिव 1/4 टू समबडी, सो आई विल बिकम 60x, करेक्ट। 80x का 1/4 20x निकल गया, ठीक है, चलेगा। सो दिस विल बी 60x। इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले A, Amulya has given 1/3. So when she has given 1/3, what remains with her is 2/3, which is 60. That means 1/3 is 30. 30 देने के बाद ये बना है, यानी इसके पहले ये 50x होगा और इसके पहले ये 90x होगा. I have 90x chocolate with me and 1/3 of 90 is 30. So if I give you 30x, so I will come down to 60 and you will go up to 80. ठीक है, तो 90x, 50x, 55x and 45. This is how they started. This was the beginning. अमूल्य हैड 80 मोर चॉकलेट्स। अभी देख रहे हो कि 90x और 50x का डिफरेंस जो है वो है 40x। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस इज 80, राइट, दैट मींस x की वैल्यू 2 होगी। यही फायदा हुआ। मैंने देखा कि क्वेश्चन में कहीं 80 है, कहीं पूछा है ऑप्शन में 20, 30, 40 है, 10 का मल्टीपल तो है, 3, 4, 5 है, तो उसका एलसीएम 60 ले लिया मैंने। तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन बनाया। नाउ जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो स्टार्टिंग में अमूल्य के पास है 180, उसके पास है 100, उसके पास है 110, उसके पास है 90, तो सेटिंग हो जाता है ये। What is the difference between the number of chocolates that Chetana and Devika had in the beginning? So they are actually asking the difference of 110 and 90, which is 20 in the given option, right? This has taken a bit of time. एक मिनट रुको। Now इस क्वेश्चन देखेंगे आप, ए बी आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज 0, सी डी आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। नाउ टिपिकल एल्जेब्रा क्वेश्चन है, माइट टेक सम टाइम, ओके ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ए माइनस सी इंटू बी प्लस डी, ए प्लस डी इंटू बी माइनस सी। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके देखता हूं मैं कि ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, व्हाट डज दिस प्रोड्यूस, ओके। देखिए क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, आई हैव कॉपीड इट, राइट, तो थोड़ा सा आप लोग को करेक्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और कोशिश करता हूं मैं, ए बी माइनस सी कॉमन ले तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आने वाला है इधर, ठीक है, आप लोग देख लेना। इधर आएगा आपका ए बी प्लस डी कॉमन ले तो ए प्लस बी प्लस डी स्क्वायर। तो ये यहां तक थोड़ा सा अलजेब्रा प्रैक्टिस करने से आया है। अब आप देखेंगे कि ए बी जिसका रूट है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, तो ए बी का वैल्यू -1 है, सॉरी +1 है, और ए प्लस बी का वैल्यू -1 है। तो लेट्स डील विद दिस फर्स्ट। तो ए बी की जगह 1 बिठा देंगे, 1 माइनस सी यानी प्लस सी स्क्वायर। यहां पे ए बी की जगह 1 बिठा देंगे, माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। यहां आके हम लोग फंसे, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है कि जो सी और डी जिसका रूट है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सी इसका रूट है, तो सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, सो सी स्क्वायर
प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू -2c। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कर रहा हूं, ये आपने समझना है कैसे हुआ। 3c को तोड़ दिया c और 2c में, 2c को उधर भेज दिया। ओके, सिमिलरली डी के साथ भी यही होगा क्योंकि उसका रूट है। सो डी स्क्वायर प्लस रूट का मतलब ही होता है कि इक्वेशन में बैठ के सेटिस्फाई करेगा। 3 स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही ट्विस्ट था इसमें। सो दिस विल बी लाइक डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, और क्या लिखूंगा, +4d। तो उधर जाके हो जाएगा -4d, है ना। जब ये -4d को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सो बेसिकली दिस विल गिव यू -2c एंड दिस विल गिव यू -4d। नाउ दैट इज इक्वल टू 8c इंटू डी। सी डी की वैल्यू 1/1 यानी 1। सो योर आंसर इज 8। दैट इज वाई आई टोल्ड यू दैट एग्जाम वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक दूसरे चैनल में देखा एनालिसिस में, वहां पे भी यही कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चन मतलब हो गया। 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मतलब हो गया। चलिए नेक्स्ट। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 टाइम स्पेंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो आप कम से कम 6 और क्वेश्चन मेरे पास क्लियरली हैं। ठीक है। देर आर 25 क्वेश्चन इन एग्जाम। ओके, सो एक एग्जाम में 25 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर फेचेस 4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर कैरीज -1, जैसे होता है जनरली, +4 और -1। सब ठीक है। What is the maximum score that you can achieve? What is the maximum score that you can achieve? So that will be 25 into 4, all correct. So that will give you 100 marks. What is the minimum that you can score in this exam? That is going to be 25 into -1. If you have attempted all the questions wrong, so that is going to be -25 marks. Okay. Now, how many numbers are there between -25 to 100? If you count 1 to 100, 100 है, ठीक है। -1 से -25, 25 है, +1 कौन, 0। तो -25 से 100 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू +1। सो देयर आर 126 डिफरेंट नेट स्कोर्स दैट इज पॉसिबल। सो आंसर होगा 126। रॉन्ग, दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज हर स्कोर पॉसिबल नहीं होगा। और अगर पहले कभी आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो आपको ये मुश्किल लगेगा। हर एक स्कोर पॉसिबल नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई। मान लीजिए आपने 25 करेक्ट किया तो आपका स्कोर कितना हो गया था, 100। और मान लीजिए आपने 24 करेक्ट किया तो आपका स्कोर 96। बाकी एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो 26 प्लस 96 प्लस 0 96 फिजिबल है। और अगर वो क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो 96 -1 95 पॉसिबल है। 100 पॉसिबल। अच्छा, मान लीजिए 23 करेक्ट किया, 23 करेक्ट करने पर आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 92। बाकी बचे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या आपने एक करके गलत किया, या आपने 2 करके गलत किया, तो ये हो जाएगा 92, 91, 90। सिमिलरली अगर आपने 22 क्वेश्चन करेक्ट किया, यू हैव स्कोर्ड 88। जो बाकी 3 क्वेश्चन है, तीनों गलत कर दिए, सो 88 -3, या 88 -2, या 88 -1, या आपने अटेम्प्ट 88 -0। सो आप देखेंगे यहां पर कि आप 88 ला सकते हैं, या उससे कम 87, या उससे कम 86, या इससे कम 85। व्हेन यू हैव 22 करेक्ट, 22 करेक्ट कर लिया, 3 बच गए थे, तीनों को छोड़ दो तो आपके 88। लेकिन एक रॉन्ग अटेम्प्ट 87, 2 रॉन्ग अटेम्प्ट 86, और 22 करेक्ट करके 3 गलत करे तो 85, क्योंकि आपके पास 3 रॉन्ग करने का ऑप्शन है। 22 जब 22 करेक्ट करोगे, 25 क्वेश्चन का एग्जाम है,
ठीक है, तो आपके पास तीन, तो ये पॉसिबल स्कोर है 88, 87, 86। ठीक है, फिर 89 जो है वो पॉसिबल स्कोर नहीं है। 89 आप नहीं स्कोर कर पा रहे हो, कैसे स्कोर करोगे? ठीक है, 90 कर पा रहे हो, 91, 92, आप 93 स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ट्राई करना। 94 स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ट्राई करना। 95 कर पा रहे हो, 96 कर पा रहे हो, फिर 97 नहीं कर पा रहे हो, 98 नहीं कर पा रहे हो, 99 नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को पहले आईएमएस के किसी मटेरियल में सॉल्व कर रखा था, तो 6 ऐसे स्कोर्स थे जो पॉसिबल नहीं थे, तो मेरे को वहां पे 120 आंसर आ गया था पहले तो। उसके बाद मैंने सोचा कि नेगेटिव में जाऊं, -1, -2, -3, वहां पे भी गड़बड़ हो सकती है। फिर मन में ख्याल आया कि 120 से कम कोई ऑप्शन ही नहीं था वहां पर एग्जाम में, तो मैंने 120 टिक किया। ठीक है, अगला वीडियो मैं डीआई का बनाऊंगा जिसमें 2 सेट मुझे पूरा याद है, उसको सॉल्व करके जो कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है,